Okay. Now, in our last session, we have started your unit number 3, as you know, and the unit number 3 is the capacity to contract. Section 10 of the Indian Contract Act says that a contract to be valid must be entered by the parties capable of making the contract. Then we discussed that who will be the parties capable to make a valid contract. The parties who are competent to contract will be number one, who is a major according to the law to which he is a subject. Number two is a sound mind. And number three, who is not disqualified by law from making the contract. Okay. So according to section 11 of the Indian Contract Act, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल कौन है या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या वहां पे parties will be considered as a capable of making the contract if they are a major according to the law to which they are subject. Number two, they are a sound mind. And number three, they are not disqualified by law from making the contract. अगर ये तीनों condition complete होते हैं तो parties will be considered as a competent to contract. Okay. Out of that, in our last lecture, we have started the position of the minors agreement. क्योंकि first capacity to contract क्या बताता है वहाँ पे the person must be major. Okay. We discussed that to call a particular person as a major, the law which is applicable deciding the age of majority in India is the Indian Majority Act 1875 law है जिसके अनुसार the person who has completed the age of the 18 year will be considered as a major. जिसका 18 year complete हुआ है हाँ, a person who is even less than 1 day than 18 year will also be considered as a minor. Okay, 18 से नीचे एक दिन भी वो particular person छोटा होगा तो भी वो माइनर कंसिडर किया जाएगा. तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से जिसका 18 कंप्लीट हो चुका है that person will be considered as a major. Okay, so below 18 will be considered as a minor and minors agreement is considered to be completely क्या consider किया गया बोलो void consider किया गया. Minors agreement is considered as a void. हाँ, not only void but in fact minors agreement is considered as a void ab initio. That stands for from the beginning. शुरू से ही day one से ही जिस दिन से वो agreement बनाया गया माइनर का एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो void कंसिडर किया जाएगा. हाँ, now see we discussed की मोहिरी बीबी versus धर्मोदास घोष. हाँ, that was a famous judgment and according to that judgment minors agreement will be considered as a void ab initio. जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि माइनर ने किसी से लोन लिया था और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर थी. नाउ दैट मॉर्गेज वाज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज एन एग्रीमेंट बायर विद माइनर इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड. ओके, सो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, करता है तो वो वॉइड ab initio हो जाएगा. दैट वाज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अ माइनस एग्रीमेंट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. देन वी डिस्कस्ड दैट माइनॉरिटी में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को इवन मेजर बनने के बाद में भी वो माइनर रेटिफाई करना चाहता है, मतलब स्वीकारना चाहता है तो स्वीकार नहीं सकता है. माइनस एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन नहीं हो सकता आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, क्योंकि मेजर बनने के बाद माइनॉरिटी में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करने के लिए माइनर को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा का. सो देयरफॉर उसको जरूरत ही नहीं थी वो रेटिफाई करने की. तो इसकी वजह से माइनॉरिटी में बनाया गया एग्रीमेंट को मेजर बनने के बाद अगर माइनर रेटिफाई भी करना चाहता है तो भी वो क्या नहीं है, वहां पे रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा. सो माइनस एग्रीमेंट इज अवॉइड ab initio, नो रेटिफिकेशन. हाँ, इवन आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी. हाँ, देन वी डिस्कस्ड कि माइनर को लॉ डबल बेनिफिट देता है. ओके, जब लायबिलिटी की बात आती है तो माइनर कैन रेज हिज हैंड सेइंग दैट आई एम अ माइनर, ओके, सो आई एम नॉट लायबल फॉर एनीथिंग. But जब benefit की बात आती है तो law allows the minor to take a benefit out of the contract. Okay, and for that we take out an example of the partnership. So Indian Partnership Act के section 30 के हिसाब से minor partnership के benefits के लिए all the partners के consent से क्या किया जा सकता है, admit किया जा सकता है वहाँ पे. Okay, so minor mortgager नहीं बन सकता, मतलब माइनर लोन लेता है तो लायबल नहीं होगा उस लोन के रीपेमेंट के लिए. बट माइनर से कोई लोन लेता है तो माइनर अपने पैसे रिकवर कर सकता है. सो माइनर कैन नॉट बिकम प्रॉमिसर बट माइनर कैन बी अ प्रॉमिसरी. माइनर कैन नॉट बिकम अ मॉर्गेजर बट माइनर कैन बी अ मॉर्गेजी. इन अ वे माइनर भले ही लायबल नहीं है बट बेनिफिट माइनर ले सकता है. ओके,
देन नेक्स्ट वन देखो, हमने डिस्कस किया था पॉइंट, अगर आपको याद होगा तो, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी, मींस इवन व्हेन माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटेड इज एज, ओके। अगर कोई माइनर है 17 साल का, बट उसने दुकानदार को झूठ बोल के अपना एज 20 बताया और कॉन्ट्रैक्ट किया और पैसे अभी तक नहीं दिए थे, तो इवन इन दैट केस ऑल्सो माइनर कैन प्लीड इज माइनॉरिटी। तो वो खुद अपना एज झूठा बता के सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस भी करता है माइनर, तो भी माइनर माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। इन दैट केस ऑल्सो लॉ किसको प्रोटेक्ट करता है, बोलो वहां पे माइनर को ही लॉ प्रोटेक्ट करता है वहां पे। हाँ, देन हमने डिस्कस किया कि इसका मतलब क्या हो गया, बोलो द लॉ ऑफ एस्ट्रोपल डिड नॉट अप्लाई टू द माइनर, ओके। मतलब माइनर ने खुद अपना एज मेजर बताया, इसीलिए बाद में माइनर मुकर नहीं सकता है, स्टॉप होता है कि वो अपनी बात से पलट नहीं सकता है। ये जो रूल होता है एस्ट्रोपल का, वो रूल इवन किसको एप्लीकेबल नहीं है, बोलो माइनर को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है वहां पे, ओके। सो माइनर खुद का एज झूठा भी बता के कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो भी मेजर पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको ही चेक करना पड़ेगा कि माइनर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो वो ऐसे बोल के कि माइनर ने खुद अपना एज मुझे झूठा बताया, माइनर को लायबल नहीं पकड़ सकता। हाँ, देन हमने डिस्कस किया लायबिलिटी ऑफ द माइनर फॉर नेसेसरीज, ओके। अगर माइनर को या माइनर पे जो डिपेंड है उसको कोई नेसेसरीज ऑफ द लाइफ सप्लाई की गई है, तो माइनर विल बी लायबल इन दैट पर्टिकुलर केस, बट हियर माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल, ओके। जैसे कि उसको किसी काम को लगा और पैसे रिकवर करो, या उसको जेल भेजो पैसे ना देने के लिए, ऐसे माइनर के साथ नहीं हो सकता। Minor will be liable for the necessaries of the life, but who is liable? It is a minor estate that will be liable, okay. To the extent the estate minor है, उतनी minor की क्या होगी वहां पर responsibility होगी, हाँ। And the last point we discussed that minor will be liable for the necessaries, okay, not necessities, हाँ, क्योंकि इंसान के necessities of the life unending होते हैं, तो minor will be liable only to the things which are required for his utility, रिक्वायर्ड फॉर हिज लाइवलीहुड, हाँ, उतने चीजों के लिए क्या होगा, माइनर वहां पे लायबल होगा, ओके। सो इन आवर लास्ट सेशन हमने क्या किया था, ये सारे पॉइंट्स अप टू दिस माइनर के एग्रीमेंट के बारे में क्या किए थे, डिस्कस किए थे कि माइनस एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड ab initio, माइनर का एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा, वॉइड ab initio कंसिडर किया जाएगा। देन नंबर 2 डिस्कस किया माइनर के एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है, हाँ। देन हमने डिस्कस किया कि माइनर, हाँ, जो है वो फॉल्सली अपना एज रिप्रेजेंट करता है, तो भी माइनर कैन प्लीड द माइनॉरिटीज का मतलब रूल ऑफ एस्ट्रोपल किसको एप्लीकेबल नहीं है, बोलो माइनर को एप्लीकेबल नहीं है। Then we discuss minor will be liable for the necessaries supplied to him or anyone who is depending on him, but it is the minor's estate that will be liable, okay. No personal liability will be there of the minor, okay. So got the point? Up to this we have gone through our last lecture. Now the sixth point we are going to start, okay. minor के agreement की position के बारे में जो next point हम start करें वो कौन सा point start करें, देखो we are starting the sixth point about the position of the minor. Let's start, हाँ. Contract by guardian how far enforceable, minor के on behalf, minor का कोई guardian अगर contract कर रहा है तो वहां पे माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। सी दो माइनस एग्रीमेंट इज अ वॉइड, ऑफ कोर्स जनरल रूल तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनर का एग्रीमेंट कैसा है, बोलो माइनर का एग्रीमेंट है वॉइड, हाँ। His guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on the minor's behalf, हाँ। लेकिन माइनर के ऑन बिहाफ कभी कभी माइनर के गार्डियन क्या कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, कब कर सकते, देखो वहां पे नाउ व्हेन द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर व्हिच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंसी, पॉइंट नंबर 1 देखो, वो कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन को करने का अधिकार चाहिए, ओके। गार्डियन उतने ही कॉम्पिटेंसी में माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जितना उसको अलाउड है, एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर, याद रखो माइनर के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन करता है तो उसको एनफोर्सेबल अगर करना होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस गार्डियन के विद इन कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, हाँ। देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच अ माइनर कैन एनफोर्स, फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माइनर के गार्डियन ने भी किया तो भी माइनर उसको एनफोर्स कर सकता है
अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन ने अपने विद इन कॉम्पिटेंसी किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन ने माइनर के बेनिफिट के लिए किया है। ओके, देखो, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट वैलिड। इसका मतलब माइनर के लिए गार्डियन कुछ भी करे और वो वैलिड होगा क्या? नहीं। हाँ, फॉर इंस्टेंस द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, जैसे कि माइनर की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गार्डियन बेच रहे हैं या माइनर के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गार्डियन खरीद रहा है, तो जनरली गार्डियन को वैसा अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की दुनिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब 5-10 लाख के नीचे आएगी ही नहीं। ओके, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करना माइनर के लिए या माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट वगैरह करना, ये एक बड़ी एक्टिविटी। ओके, तो ये बड़ी एक्टिविटी गार्डियन ऐसे माइनर के लिए नहीं कर सकते। एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताते हैं आपको। हाँ, इसके लिए ना किसकी, कोर्ट की परमिशन चाहिए। मतलब कोर्ट के थ्रू वगैरह अपॉइंटेड गार्डियन अगर होंगे माइनर के, हाँ, तो वो कोर्ट के परमिशन से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, देखो क्या गया, बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय सर्टिफाइड गार्डियन। नाउ हु इज द सर्टिफाइड गार्डियन? द आंसर इज गिवन इन योर मॉड्यूल इटसेल्फ। ओके, who is a certified guardian? Guardian appointed by the court will be considered as a certified guardian. Okay, हाँ, but a contract entered through a certified guardian of a minor with the sanction of the court, as I already told you, for the sale of a minor's property may be enforced by either party to the contract. हाँ, लेकिन अगर माइनर के प्रॉपर्टी को सेल करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के गार्डियन ने किया है, हाँ, और वो कोर्ट के परमिशन से किया है, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, एनफोर्सेबल हो जाएगा। ओके, सो माइनर के बेनिफिट के लिए विद इन कॉम्पिटेंसी गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हाँ, और वो वैलिड होगा। लेकिन माइनर के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना या खरीदना ये गार्डियन के पावर में नहीं आता है। बट उसको वापस एक लेकिन है, अगर वो गार्डियन सर्टिफाइड गार्डियन है, मतलब कोर्ट थ्रू अपॉइंटेड गार्डियन है, हाँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसने कोर्ट की सैंक्शन लिए, तो फिर वो माइनर की प्रॉपर्टी सेल कर सकता है गार्डियन, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? देखो, एनफोर्सेबल हो सकता है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, हाउ फॉर एनफोर्सेबल वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब ना हमें आगे जाके ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद उसके अलग अलग रेमेडीज होते हैं। ओके, एंड वन ऑफ द रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या पता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब नाउ यू विल हैव द क्वेश्चन इन अ माइंड कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या आ जाएगा कि मुझे अगर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ अल्टरनेटिव नहीं चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिसाइड हुआ है वही मुझे करके चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उससे क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देन मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा है उसी को कंप्लीट करो। वी डोंट वांट डैमेजेस, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्स टू दिस। ओके, व्हाट इज डिसाइडेड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही कंप्लीट करके दो, मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। हाँ, आपके नॉलेज के लिए बताती हूँ, हम जब एज एन एडवोकेट कोर्ट में स्टैंड होते हैं तो लॉ में सबसे बड़ी रेमेडी अगर कोई है ना तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। हाँ, इतने आसानी से वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे माइनर के एग्रीमेंट के बारे में भी आपको पता है कि माइनर का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होता है, तो उससे हम डैमेजेस नहीं मांग सकते, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो क्या माइनर के एग्रीमेंट पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नो, क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ध्यान में गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही करके दो, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माइनर तो इधर डैमेजेस के लिए लायबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके लिए तो लायबिलिटी दूर की बात है। सो माइनस एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड है, there can be no question of the specific performance of such agreement. Okay, वहां पे एग्रीमेंट ही void है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होने का कोई इशू आता ही नहीं है। ओके, सो सिंपल, माइनर के एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है क्या? आंसर विल बी नो। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? देखो, नो इंसॉल्वेंसी। हाँ, नाउ ये क्या आ गया? आपको पता है इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन सबको पता है, यू आर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? असेट्स लायबिलिटीज दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर लायबिलिटी ज्यादा और असेट्स कम है तो जनरली वो इंसान क्या करता है? वहां पे दिवाळखोरी डिक्लेयर करता है, अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता है। तो इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन असेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज है। ओके,
liabilities are more than that of the assets. In that situation, it's called as an insolvency. अब let me know क्या माइनर किसी चीज के लिए लायबल है. हमने ऊपर डिस्कस किया राइट कि माइनर अगर लाइबिलिटी की बात आती है तो हैंड रेज करके क्या कर सकता है, आई एम नॉट लायबल बिकॉज आई एम माइनर. हाँ, तो यहाँ पे लाइबिलिटी ही नहीं है माइनर पे, तो लाइबिलिटीज असेट से ज्यादा होने का सवाल ही नहीं आता राइट. सो देयरफॉर माइनर कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा, याद रखो. हाँ, a minor cannot be declared as an insolvent as in the incapable of contracting the rights and dues payable from the personal properties of the minor and he shall never be personally liable. Okay, then मेरा minor contract करने के लिए क्या है, incapable है. हाँ, तो अगर minor के कुछ dues भी है तो भी वो माइनर की प्रॉपर्टी अगर होगी तो उससे पे आउट होंगे. हाँ, एंड ही शैल नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल. माइनर के ड्यूज के लिए माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा. ओके, देन नेक्स्ट वन आप सबको अच्छे से पता है. ओके, पार्टनरशिप फॉर्म में फुल फ्लेज पार्टनर माइनर नहीं बन सकता. हाँ, माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल फ्लेज पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म because he is incompetent to contract and partnership is also considered as a contract. Okay, but इसको exception section 30 of Indian Partnership Act है, उसके हिसाब से minor can be admitted to the benefits of the partnership with the consent of the all partners. Okay, so a minor being incompetent to contract cannot become a partner in a partnership firm, but under section 30 of the Indian Partnership Act he can be admitted to the benefits of a partnership. Partnership के benefits के लिए लेकिन उसको admit किया जा सकता है. हाँ, now can a minor become agent? Next question arises. Okay, can a minor become agent? हाँ, देखो the answer is that आपको पता है एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप में एजेंट से भले ही गलती हो जाए बट लायबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल की. सर्वेंट से भले ही गलती हो जाए बट लायबिलिटी किसकी होती है, बोलो. लायबिलिटी होती है वहां पे मास्टर की. अगर जो भी एक्ट एजेंट या सर्वेंट का है वो उसके विदिन कैपेसिटी है, विदिन परमिशन है, तो जो भी वो एजेंट करता है उसके लिए लायबल कौन होगा, बोलो. उसके लिए लायबल होगा उसका प्रिंसिपल. ओके, देखो अ माइनर कैन एक्ट एज ए एजेंट. हाँ, तो वो जो रूल हमने डिस्कस किया कि एजेंट गलती करता है तो भी लायबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल की. तो माइनर एजेंट बन सकता है, तो लॉ कहता है कि यस, क्योंकि ऐसे भी एजेंट पे लायबिलिटी नहीं है, तो एजेंट गलती करता है तो लायबिलिटी तो प्रिंसिपल पे ही जानी वहां पे सेम. तो माइनर कैन बिकम एजेंट है, याद रखना. अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट but he will not be liable for his principal for his act. Minor can draw, deliver and endeavor negotiation instrument without himself being liable. Okay, बस वो जाके क्या कर सकता है, पार्टीज के साथ नेगोशिएशन कर सकता है, नेगोशिएशनल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकता है. ओके, a minor can have an account in the bank. He can draw a check for his purchase, but he shall not be liable for the check bounce, nor can he be sued under the court of a law for any fraud done from his account. Okay, माइनर का बैंक में बैंक अकाउंट हो सकता है, वो पैसे चेक जमा करा के पैसे विड्रॉ कर सकता है, बट याद रखो minor cannot be held liable for any check bounce, nor he can be sued under any court of law for the fraud done from his account. Minor ने चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, हाँ, या फिर माइनर ने अकाउंट में फ्रॉड्स किए, ऐसे ग्राउंड्स पे आप माइनर को पकड़ नहीं सकते. ओके, हाँ, सो माइनर एजेंट बन सकता है, हाँ, नो प्रॉब्लम. हाँ, देन नेक्स्ट वन, माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट और गार्डियन. ध्यान मेरा उल्टा पॉइंट है. ऊपर जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किया था उसमें क्या था, लायबिलिटी ऑफ द गार्डियन फॉर द एक्ट ऑफ माइनर. माइनर के एक्ट के लिए गार्डियन की लायबिलिटी डिस्कस की थी. अब माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन. ओके, तो हमें क्या डिस्कस कर रहा है यहाँ पे कि माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए उसके पेरेंट्स को आप जिम्मेदार नहीं पकड़ सकते हो. हाँ, माइनर ऊपर जो डिस्कस किया था वो क्या था, वहां पे माइनर के लिए उसके पेरेंट्स गार्डियन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हाँ, अगर वो उनके विद इन कॉम्पिटेंसी और माइनर के बेनिफिट के लिए. बट माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके लिए उसके पेरेंट्स को लायबल पकड़ा है, ऐसे मोस्टली वहां पे नहीं होगा. हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. हाँ, क्या हो गया, देखो कोई अथॉरिटी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं, इम्प्लाइड नहीं है,
my infant cannot capable of binding his parent or a guardian even for the necessaries. Okay, even हमने minor को necessary supply किए तो उसके लिए भी हम किसको liable नहीं पकड़ सकते, बोलो उस minor के parents या guardian को liable नहीं पकड़ सकते. Okay, हाँ, the parent will be held to be liable only when the child is acting as a agent for a parent. याद रखना, अगर वो child parent का as a agent काम कर रहा है तभी क्या होगा बोलो, उस माइनर के एक्ट के लिए पेरेंट लेवल होंगे, क्योंकि पेरेंट कौन होगा वहां पे, प्रिंसिपल होगा. हाँ, देखो, रीचा अ माइनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग द स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन दैट हर पेरेंट विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द स्कूटी. रीचा क्या करती है, दुकानदार से स्कूटी खरीदती है और बोलती है कि पापा से पैसे मांग लेना, माय पेरेंट विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी. द डीलर सेंट अ लेटर, हाँ, फॉर द पेरेंट फॉर अ मनी. ऑफ कोर्स डीलर ने रीचा के पेरेंट्स को लेटर भेजा और वो पैसे वापस मांगे वहां पे. द पेरेंट विल नॉट बी लायबल फॉर सच अ पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बाय माइनर इन देयर एक्सेंस एंड absence एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज. ओके, तो यहाँ पे उस रीचा के पेरेंट की लायबिलिटी क्या होगी बोलो, दे विल नॉट बी लायबल. व्हाई दे विल नॉट बी लायबल, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसने बनाया, माइनर ने एग्रीमेंट बनाए. हाँ, और माइनर ने बनाया, पेरेंट को उसके बारे में पता नहीं है, तो इसकी वजह से पेरेंट विल नॉट बी लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड इनटू बाय द माइनर्स. ओके, देन नेक्स्ट वन देखो, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, हाँ, कि अगर समझो कभी ऐसे हो गया कि फादर और सन ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फादर है ऑफकोर्स 25 ईयर और सन है वहां पे 4 to 5 ईयर का. हाँ, नाउ अगर वो दोनों जॉइंट में माइनर और adult कोई कॉन्ट्रैक्ट करते तो what will be the liability in that particular case? हाँ, in such a case the adult will be liable on the contract and the minor will not be liable. यहाँ पे भी वापस किसको प्रोटेक्शन देखो, माइनर को ही प्रोटेक्शन. हाँ, adult will be liable but minor will not be liable. हाँ, one of them was a minor. It was held that the vendor, हाँ, could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. हाँ, क्या हो गया देखो, in the case of a Sendas versus Ramchand, हाँ, where there was a joint purchase by two purchaser, one of them was a minor. दो लोगों ने मिला के कुछ joint सामान खरीदा जिसके मालिक क्या थे, वहां पे दो थे, एक था परचेसर जिसने ऑनलाइन पेमेंट किया और दूसरा था वो माइनर. हाँ, now it was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not minor, क्योंकि पता है आपको minus agreement is considered as a void agreement. हाँ, now देखो, कोई अगर कर्जा लेता है तो उस कर्जे के लिए जामीनदार बनते पता होगा कि हाँ, मिस्टर एक्स को जो भी लोन चाहिए दे दो, आई एम हिज श्योरिटी, इफ ही डिड नॉट पे आई विल पे, इफ ही डिड नॉट पे आई विल पे. हाँ, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके, तो क्या माइनर श्योरिटी बन सकता है, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी. हाँ, देखो, श्योरिटी मतलब फुल ऑफ लायबिलिटी है ना, अगर वो नहीं देता है तो मैं दूंगा, मतलब श्योरिटीशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली गई है पेमेंट करने की. देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी व्हेन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर अ माइनर, हाँ, देन क्या जाएगा देखो, द एडल्ट इज लायबल टू थर्ड पार्टी एंड देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी. ओके, अगर कोई माइनर, हाँ, क्या बनता है, श्योरिटी बनता है, तो क्या बन सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन हाँ, पॉइंट क्या रहा ध्यान में आ गया, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर. कोई एडल्ट पर्सन, 18 कंप्लीटेड पर्सन किसी माइनर के लिए श्योरिटी बना है वहां पे, हाँ, तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा वहां पे, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या वो एडल्ट लायबल होगा. तो आंसर विल बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी व्हेन एन एडल्ट श्योरिटी फॉर अ माइनर, हाँ, he is an adult is liable to the third party. Yes, वो third party को liable होगा. हाँ, example देखो, Mr. X guaranteed for the purchase of the mobile phone by Krish, a minor. In case of a failure of the payment, Krish by Krish, Mr. X will be liable to make a payment. Okay. Now ध्यान में रहा है, X guarantee करता है for the purchase of mobile phone by the Krish, minor है Krish, और उसके क्या वहाँ पे and in the case of a failure of a payment by the Krish, Mr. X क्या हो जाएगा वहां पे liable हो जाएंगे. X कौन है, क्योंकि श्योरिटी है, तो yes, श्योरिटी will be liable for the act of the minus non payment. हाँ, क्या माइनर एक पर्टिकुलर कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है, हाँ,
अगेन देखो टू टेक अ शेयर्स फ्रॉम द कंपनी is also considered as a contract. ये भी एक तरह का क्या बोलो कॉन्ट्रैक्ट ही है. ओके सो एज अ जनरल रूल माइनर क्या नहीं कर सकता वहां पे, शेयर नहीं खरीद सकता है तो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है. लेकिन अगर बाय मिस्टेक माइनर कंपनी का मेंबर बनता है, मतलब गलती से उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में पड़ गया, हाँ, और उसको शेयर सर्टिफिकेट वगैरह भी आना शुरू हो गया, तो माइनर की ड्यूटी क्या बनती है पता है आपको वहां पे, कि वो इमीडिएटली उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, रिसाइन करे वहां पे. हाँ अदरवाइज हाँ वो अगर आगे लेके जाता है तो क्या होगा देखो, लेट चेक आउट. हाँ a minor being incompetent to contract cannot be हाँ a shareholder of the company. तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता. हाँ इट इज क्या होगा देखो, if by mistake he become a member, the company can resign the transaction and remove the name from the register. ध्यान में रहे, if by mistake अगर वो मेंबर बन जाता है, हाँ, तो कंपनी को पूरा पूरा अधिकार है कि कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा सकती है. हाँ बट अ माइनर में एक्टिंग दो लॉफुल एजेंट बिकम अ शेयर होल्डर by transfer or a transmission of a fully paid up share. हाँ ध्यान में रख के देखो, लेकिन माइनर by acting through his lawful guardian, उसके लॉफुल गार्डियन के थ्रू क्या कर सकता है देखो, वो अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करके क्या बोल सकता है वो वहां पे की देन में माइनर हाँ एक्टिंग थ्रू हिज लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स फुल्ली पेड. अगर फुल्ली पेड शेयर्स है तो माइनर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन से क्या कर सकता है वहां पे शेयर्स को ले सकता है. ध्यान में आके देखो, वापस एक बार बताती हूँ आपको, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पेटेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, तो इसकी वजह से माइनर नॉर्मल शेयर होल्डर नहीं बन सकता. हाँ लेकिन अगर गलती से माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है, हाँ, तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है देखो, रिसाइन कर सकता है, और फिर कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्या कर देगी, वहां पे रिमूव कर देगी. हाँ लेकिन अगर माइनर हाँ क्या कर सकता है, अपने लॉफुल गार्डियन के थ्रू शेयर्स लेना चाहता है तो वो शेयर्स ले सकता है. कौन से मेथड से, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन. ट्रांसफर ट्रांसमिशन समझते हो, मैं अपने शेयर्स बेच रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर. और अगर लीगल गार्डियन की या एनीवे किसी की डेथ हो जाती है और उसके डेथ के बाद में उसको शेयर्स मिलते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन. ओके व्हाटएवर, हाँ मिस्टर एक्स के फादर की डेथ हो गई तो उसके शेयर्स मिस्टर एक्स को मिल गए, तो दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन. ओके हाँ याद रखो, माइनर के नाम पे शेयर्स आने के लिए वो शेयर्स कंपलसरी फुल्ली पेड होने चाहिए. अनपेड शेयर्स होंगे वो माइनर के नाम पे नहीं कभी आ सकते. हाँ क्योंकि माइनर लायबल नहीं है ना, तो कल कंपनी बंद पड़ गई तो कॉल्स ऑन शेयर्स अगर हो गया बचे हुए पैसों के लिए, तो माइनर तो नहीं दिया तो उसको मांगना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ माइनर इज नॉट लायबल. सो देयरफॉर माइनर अपने लीगल गार्डियन के थ्रू कंपनी के शेयर्स ले सकता है थ्रू ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, बट दैट शेयर्स मस्ट बी कंपलसरी. क्या होने चाहिए बोलो, फुल्ली पेड शेयर्स होने चाहिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी ऑफ द माइनर फॉर द टॉर्ट. माइनर की लायबिलिटी किस पे देखनी है हमें यहाँ पे, लायबिलिटी ऑफ द माइनर फॉर अ टॉर्ट. अब ना आपको सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया शायद माइंड में, व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड टॉर्ट. ये टॉर्ट क्या कंसेप्ट है यहाँ पे. हाँ सो देखो, टॉर्ट मतलब ना एक सिविल रॉन्ग होता है. हाँ टॉर्ट मतलब क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है. तो आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो भी तो सिविल रॉन्ग है वहां पे. यस दोनों में सिविल रॉन्ग है, बट दोनों में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है पता है आपको. कॉन्ट्रैक्ट इज सिविल रॉन्ग जिसके लिए आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं. हाँ और tort is the civil wrong for which an action is the action for unliquidated damages. Now what is the difference between this particular two term, liquidated damages and unliquidated damages. Liquidated stands for those which can be counted. Okay जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10 बैग राइस दे दूंगी, हाँ, और अब मैं पलट रही हूँ, राइस का रेट जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन 25 रुपए था, और जिस दिन मैंने ब्रीच किया उस दिन 30 रुपीज है, तो आपका डैमेज सीधे सीधे काउंट करना पॉसिबल है ना वहां पे. वॉट एवर 5 रुपीज 10 रुपीज पर केजी आपका जो नुकसान हुआ उसको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितना राइस दिया उससे, और आपका नुकसान क्या हो जाएगा वहां पे निकल के आ जाएगा. बट
tort is a civil wrong for which a remedy is unliquidated damages. Unliquidated means which cannot be counted. जैसे ना फॉर एग्जांपल एक टॉर्ट का एग्जांपल आपको बताती हूँ जिसको हम लोग ना ट्रेसपास बोलते हैं. हाँ, ना ट्रेसपास मतलब क्या होता है पता है? अनलॉफुल एंट्री ओवर द लैंड ऑफ अनदर पर्सन. हाँ, दूसरे के जमीन पे उसके परमिशन के बिना एंटर करना. हाँ, वो क्या कंसिडर किया जाता है? टॉर्ट कंसिडर किया जाता है विद द नेम ऑफ अ ट्रेसपास. हाँ, तो अगर ऐसे कोई किसी के घर में क्या हो गया, घुस के आया, तो जिसके घर में वो घुस के आया है वो एक्शन तो ले सकता है, नो डाउट टॉर्ट हुआ है वहां पे. हाँ, लेकिन उसका एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है या क्या नुकसान हुआ है ये काउंट करना पॉसिबल है क्या? आपने मेरी बदनामी की, हाँ, तो मैं आप पे डिफॉर्मेशन का सूट फाइल कर दूंगी कि आपने मुझ पे बदनामी की है. बट एग्जैक्टली मेरी बदनामी 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, मेरा नाम कितना वैल्यूएबल है, ये सच काउंट किया जा सकता है क्या? वहां नहीं. तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है कि टॉर्ट में आपको डैमेजेस कितने दे. और अगर आप कोई अदर सिविल रॉन्ग करते हो तो बाय लॉ वो डिसाइडेड ही है कि कितने डैमेजेस रिकवर करने हैं वहां पे. हाँ, देखो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच एक्शन इज अ action for unliquidated damages. Okay, let's check out. देखो, a tort is a civil wrong है. A minor is liable in a tort unless the tort is really become the breach of contract. हाँ, thus where a minor has borrowed a horse for a riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. हाँ, क्या हो गया? धन में गया माइनर के एक फ्रेंड ने माइनर से क्या किया? हॉर्स लिया और उस पे बैठा, जंप मारा और गिर जाया. गिर जाने की वजह से क्या गया? वो हॉर्स मर गया वहां पे. हाँ, तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या क्वेश्चन मार्क कराइज होगा? देखो वहां पे मेरे माइनर बोर्ड हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली. माइनर ने क्या बोल के लिया था? घोड़ा धरना है आपको कि मैं इस पे बस बैठ के राइडिंग करूंगा, कोई और चीज इस पे नहीं करूंगा. हाँ, लेकिन इन रियलिटी माइनर अपने फ्रेंड को घोड़ा देता है और उसको चाहे वैसा यूज करने की परमिशन देता है. तो यहाँ पे माइनर टॉर्ट के लिए क्या होगा? लायबल होगा. हाँ, similarly a minor is held to be liable for to his failure to return certain circumstances instrument which he had hired and then possessed on the friend. हाँ, passed on the friend. माइनर ने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया और वो रिटर्न नहीं किया और अपने फ्रेंड को दे दिए. हाँ, तो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए भी माइनर क्या होगा? वहां पे लायबल कंसिडर किया जाएगा. हाँ, तो टॉर्ट मतलब एक सिविल रॉन्ग होता है. टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस बिटवीन है बहुत. मेन तो आपको बताती हूँ, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, क्राइम क्रिमिनल रॉन्ग है. हाँ, टॉर्ट में क्या होता है पता आपको? कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस कैसे होते हैं? वहां पे लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. ओके, नाउ देखो धन में क्या 15 points about the minus agreement we have finished out. Huh? Number 1, an agreement by or with minor is considered as a void ab initio. We discussed the judgment of Umayri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Huh? Even after attaining the majority, minor cannot give the ratification to a contract made during the minority. Huh? So next one हमने डिस्कस किया, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी और टेक द बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, इवन व्हेन ही फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिज एज. हाँ, देन माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी. माइनर विल बी लायबल फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम और एनीवन हु इज डिपेंडिंग ऑन हिम. माइनर हाँ के लिए उसके गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. वो विद इन कॉम्पिटेंसी ऑफ माइनर है. और स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे तो माइनर का जो गार्डियन है वो सर्टिफाइड गार्डियन मतलब कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन चाहिए और उसने कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए ये प्रूव करना चाहिए वहां पे. हाँ, देन माइनर के एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं होता है. देन हाँ, माइनर लायबल ही नहीं है तो इंसॉल्वेंट होने का सवाल ही नहीं आता, तो माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ द इंसॉल्वेंसीज. हाँ, माइनर फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं बन सकता बट वो सेक्शन 11 के हिसाब से बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट किया जा सकता है. हाँ, माइनर एजेंट हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट और गार्डियन बाय हिज कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, देन जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडेड की पोजीशन क्या होगी वो हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किए. हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया श्योरिटी फॉर अ माइनर. हाँ, देन माइनर एज अ शेयर होल्डर एंड माइनर की लायबिलिटी फॉर द टॉर्ट. ओके, सो बाय द वे हमने सेक्शन 11 और उसके सारे 15 पॉइंट्स इन डेप्थ डिस्कस किए. सेक्शन 11 में से one point which relate to minor is the
a contract by or entered through किसके through देखो major, sound mind and one who is not disqualified by law from making the contract. Okay, so got the point. This 16 points we discuss about the position of a minor in the law of a contract. Okay, now the next point we'll discuss is the position of the sound mind person. Contract में क्या हो गया हम क्या करते हैं discuss करते हैं.